Continue with the next question, beta. Question number 17. Matrix A and identity matrix is given. We need to find the value of A so that A square equal to A minus 2I. So first of all, we need to find A square, beta. Right? A square means it's A into A, beta. So 3, 4, minus 2 into again, beta. 3, 4, minus 2. Right? So what we have to do multiplication, beta. Row with column, beta. 3 3 is 9 plus minus 2 into 4 मतलब minus 8, beta. Similarly, first row second column 3 into minus 2 that is minus 6 minus 2 into minus 2 that is minus plus 4. Got it? Similarly, beta, 4 3 is 12 minus 8. Got it? Row into column. Again 4 into minus 2 मतलब minus 8 and minus 2 into minus 2 मतलब plus 4. Any doubt, beta? So that the value of A square is equal to 9 minus 8 1 minus 2 12 minus 8 4, beta, and minus 8 plus 4 that is minus 4. Any doubt? Anyone? Second one, what we want, beta? 3 into A, right? Means you have to multiply 3 with all the element of A. Means here is that 3 beta, minus 2 4 right, beta, and minus 2 and the last one 2I means I means 1001, so 2002. Got it? Now put all the value right in the equation, beta. So A square, in place of A square, beta, it's 1 4 minus 2 minus 4, beta. Got it? Next A, here it is, beta. 3 minus 2 right, 4 minus 2 beta, minus 2I that is 2002. Got it? Any doubt, beta? Okay, so what is that? 1 minus 2 4 minus 4 is equal to 3 minus 2, beta, minus 2 as it is, here it is 4 as it is, and here it is also minus minus 2. Got it? Any doubt, beta? If you compare it, beta, right, one by one, so 3 minus 2 equal to 1, so 3 is equal to 3, so 3 is equal to 1, beta. Again let's check with another one. So minus 2 equal to minus 2 minus 2 but again 3 equal to 1, beta. It means 3 is equal to 1 is our correct answer. Any doubt? You can also check it, these two also. Same answer, you got it. Any doubt, beta, in this question? It's so easy. Please write down. Next question, beta. Question number 18. A matrix is given 0 minus 10 alpha by 2 10 alpha by 2 0. We need to prove that I plus A left hand side is equal to I minus A, right? Cos alpha minus sin alpha into cos alpha. Got it? We know it's I means identity matrix. और the left hand side की मैं बात करूँ, बेटा, right? That is I plus A. I means 1001, beta, plus A that is 0 minus 10 alpha by 2 10 alpha by 2 0. It means it is 1. यहाँ पे आ जाता बेटा minus 10 alpha by 2 0 plus मतलब यहाँ पे आ जाता 10 alpha by 2, बेटा, and यहाँ पे 1. मतलब ये आंसर हमें चाहिए. Got it? So right hand side में सबसे पहले हमें चाहिए I minus A. तो चलो पहले I minus A यहीं पे कर लेते हैं, बेटा. अब तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, बेटा, I minus A. रेडी? I minus A, यही A है, बेटा. अगर माइनस यहाँ पे होता 1 minus 0, ये तो 1 ही रहता, बेटा. साइन इसकी चेंज हो जाती है बिकॉज 0 माइनस 10 अल्फा by 2, तो यहाँ पे हो जाता 10 अल्फा by 2. यहाँ पे 0 माइनस मतलब यहाँ पे आ जाता minus 10 अल्फा by 2 और यहाँ पे 1 minus 0 1 as it is. समझ में आया ना, बेटा? दो बार लिखना ना पड़े इसलिए मैं लिख दिया ऐसे I minus A.
आप बोर्ड के एग्जाम में भी ऐसे इतना तो डायरेक्टली आप लिख ही सकते हो जिससे आपका टाइम बचे। इसके साथ हमें मल्टीप्लाई में क्या चाहिए बेटा, राइट हैंड साइड के लिए, राइट हैंड साइड बेटा, राइट 1 into 1 10 alpha by 2 minus 10 alpha by 2 1 into, अब तो चाहिए बेटा cos alpha minus sin alpha into cos alpha. Got it? Any doubt? If you observe it carefully beta, right, we need to do multiplication, so start with it beta. 2 into 2 matrix only, रो का कॉलम के साथ बेटा 1 into cos alpha, that is cos alpha, 10 alpha by 2 into sin alpha, मतलब plus 10 alpha by 2 into sin alpha. Any doubt beta? First row second column, 1 into minus alpha, that is minus sin alpha, plus 10 alpha by 2 into cos alpha beta. Any doubt anyone? Okay, second row first column beta, minus 10 alpha by 2 into cos alpha beta plus sin alpha. Any doubt anyone? Okay, second row second column, minus minus plus, मतलब 10 alpha by 2 into sin alpha plus 1 into cos alpha, that is cos alpha. Any doubt? If you observe carefully beta, right, we want answer in the form of 10 alpha by 2. So we can do two things beta. Either we convert cos alpha and sin alpha in the form of sin cos, and similarly 10 means sin by cos, right? But उससे अच्छा है अगर मैं डायरेक्ट, मुझे 10 का फॉर्मूला आता है sin 2 alpha and cos 2 alpha का in term of 10, तो आपका इजीली सोल्व हो सकता है, राइट बेटा? अगर आपको याद ना हो तो बता दो बेटा, sin 2 alpha, राइट, इन टर्म ऑफ 10 की बात करूं मैं बेटा, तो 2 10 alpha डिवाइडेड बाय 1 plus 10 square alpha बेटा. Similarly cos 2 alpha था बेटा 1 minus 10 square alpha upon 1 plus 10 square alpha. Got it बेटा? तो इसका हम यूज करेंगे, बट यहाँ पे अल्फा है तो sin 2 alpha अगर अल्फा है बेटा तो यहाँ पे sin alpha और यहाँ पे क्या हो जाएगा अल्फा बाय 2 अल्फा बाय 2. Similarly 2 हट के यहाँ पे डिवाइड बाय 2. Any doubt बेटा? Anyone? Now put the value of this formula in the question बेटा. Cos alpha, right बेटा, मतलब 1 minus 10 square alpha by 2 upon 1 plus 10 square alpha by 2 plus 10 alpha by 2 into sin alpha बेटा, it is 2 10 alpha by 2, मतलब यहाँ पे 2 और यहाँ पे स्क्वायर लिख दो बेटा, डायरेक्ट चलेगा इतना, upon 1 plus 10 square alpha by 2. Here is the first one बेटा, right? Similarly minus sin alpha, मतलब minus 2 10 alpha by 2 divided by 1 plus 10 square alpha by 2 बेटा, plus 10 alpha by 2 into, इसमें इरेज कर देता हूं बेटा, अब तो आपको डायरेक्टली याद रहता होगा बेटा, cos alpha means that is 1 minus 10 square alpha by 2 upon 1 plus 10 square alpha by 2. Got it? Any doubt बेटा? Similarly नीचे देखो बेटा ध्यान से, right, minus 10 alpha by 2 into cos alpha, मतलब यही फॉर्मूला वापस बेटा, मतलब 1 minus 10 square alpha by 2 upon 1 plus 10 square alpha by 2 plus sin alpha, right? Sin alpha का फॉर्मूला ये रहा बेटा, 2 10 alpha by 2 upon 1 plus 10 square alpha by 2. Any doubt बेटा? Anyone? Okay, move to the next one बेटा, 10 alpha by 2, right, into sin alpha, that is 2, तो यहाँ पे डायरेक्ट स्क्वायर लिख डाल दो बेटा, because sin alpha मतलब 2 10 alpha by 2 divided by 1 plus 10 square alpha by 2 बेटा, plus cos alpha, that is 1 minus 10 square alpha by 2 upon 1 plus 10 square alpha by 2. Any doubt beta? If you observe it, no need of LCM because 1 plus 10 square alpha, 1 plus 10 square alpha by 2 is same in everyone. Right beta? So
डायरेक्टली हियर इट इज 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 नीचे रहेगा, ऊपर क्या बेटा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 प्लस 2 tan स्क्वायर अल्फा बाय 2, तो माइनस प्लस माइनस बेटा 2 माइनस 1 1, तो ऊपर भी वही बचेगा बेटा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2, नीचे भी वही बचेगा बेटा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2। एनी डाउट बेटा? सिमिलरली इसके क्रॉस में ये है, ये दोनों भी सेम ही है बेटा, देखो तो यहां पर भी वही बचेगा बेटा क्रॉस में, दैट इज 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2। अब ऊपर की बात करें यहां पे बेटा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 सेम नीचे, ऊपर की बात करें बेटा यहां पे माइनस 2 tan अल्फा बाय 2 प्लस tan अल्फा बाय 2 प्लस इनटू 1 माइनस 10, तो एक काम करता हूं tan अल्फा बाय 2 कॉमन ले लेता हूं, वो इजी रहेगा। सो tan अल्फा बाय 2 कॉमन बेटा, डिवाइड में 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2। एनी डाउट बेटा? सो व्हाट इज इट? माइनस 2 प्लस 1 राइट माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2। एनी डाउट एनीवन बेटा? अगर आप माइनस कॉमन निकालते हो बाहर तो यहां पे प्लस हो जाएगा, यहां पे माइनस हो जाएगा और यहां पर भी प्लस हो जाएगा, गॉट इट और नॉट? यहां तो किसी को डाउट बेटा? यही चीज यहां पे है बेटा, राइट? तो सेम प्रोसेस में अप्लाई कर रहा हूं, माइनस tan अल्फा बाय 2 को कॉमन ले रहा हूं बेटा, बट हमें आंसर यहां पे चाहिए, यहां पे प्लस है तो काम करो प्लस ले लेते हैं बाहर, ठीक है? डिवाइड में 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2, बोर्ड थोड़ा सा छोटा इसलिए ट्रबल रहता बेटा, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2, tan अल्फा बाय 2 कॉमन निकाल रहा हूं तो ये माइनस में अंदर दे रहा हूं तो क्या बचेगा बेटा माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 बेटा, राइट? प्लस 2। एनी डाउट एनीवन बेटा? ओके, सो लास्ट है बेटा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 1 हो गया बेटा। एनी डाउट? यहां तो ध्यान से देखो बेटा 2 माइनस 1 1, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 अपॉन 1 प्लस tan अल्फा बाय 2 30 बेटा, तो यहां पे क्या बचेगा सिर्फ माइनस tan अल्फा बाय 2। सिमिलरली यहां पे ध्यान से देखो बेटा माइनस 1 प्लस 2 इट्स 1, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 30, तो यहां पर भी क्या बचेगा tan अल्फा बाय 2, और यहां पे बेटा 1 प्लस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस मतलब ये हो गया 1। एनी डाउट? इफ यू ऑब्जर्व इट बेटा लेफ्ट हैंड साइड यहां पे राइट 1 माइनस tan अल्फा बाय 2 tan अल्फा बाय 2 1, यहां पर भी वही आ गया बेटा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, व्हाट इट और नॉट? एनी डाउट बेटा? So try this question again once time after watching entire this question beta, right? Please write down properly because it is important question, right? And it's somehow complicated for you, not much. Please write down. Continue with the next question beta. Question number 19. What problem hai beta? Trust fund has rupees 30,000 that must be invested in two different type of bond, right? The first bond pay 5% interest per year and the second bond pays 7% interest per year. Using matrix multiplication, determine how to divide rupees 30,000 among the two type of bond. If the trust fund must obtain annual total interest of rupees 1800 or 2000, मतलब दो अलग अलग A and B है बेटा। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट वन तो सॉल्व करता हूँ, उससे पहले right 30,000 divided into two type beta, so I will suppose let right two bonds right of rupees x and y, right beta, means total x plus y is equal to 30,000, got it beta? First one has an interest of 5% per year for the first one, मतलब x में मैं ले रहा हूं बेटा 5% इंटरेस्ट एंड y के लिए ले रहा हूं बेटा 7% इंटरेस्ट, राइट? Using matrix multiplication, determine how to divide 30,000 into two type of bond beta, means we have to do multiplication, right? So if I will suppose bond as in a horizontal means row wise beta x and y, right? Here it is a matrix beta, see one row and two column, so compulsory multiply with the rate means interest beta, because we know it beta
that is simple interest equal to PRT by 100. Right? P means principal, right? X and Y is it beta? R means rate, that is 5% and 7%. T means time. For the first year, so no need to write down the T beta. In place of T, right, it's a 1 only. Got it beta? So we need to multiply with P into R by 100. That is rate, there is the principal. Right beta? So if I need to multiply this matrix with another of interest, I need to see the beta order also, right? Here it is order 1 into 2. So definitely for the second one means rate, I need 2 beta here, because inside पता है ना rule of mathematics multiplication beta of matrices, अंदर inside वाले 2 इसका कॉलम और इसका रो सेम होना चाहिए. तो यहाँ पे कंपल्सरी 2 into 1 मैट्रिक्स आएगी बेटा, मतलब 5% मतलब 5 by 100 and 7% मतलब 7 by 100 is equal to कितना पहले के लिए ले रहा हूँ बेटा, मतलब 1800. Got it or not? Any doubt बेटा? Right? Okay, multiply बेटा, तो h into मतलब 5h by 100 plus 7y by 100 equal to 1800. Right? So what is that beta? 5x plus 7y equal to 180000. Any doubt beta? 100 तो उस तरफ multiply मिले हुए हैं. Now what's the value of y beta from here? If I need to convert into a one variable, then y equal to beta 30,000 minus x. Put the value beta. So 5x plus 7 into 30,000 minus x. Any doubt beta? So what is that beta? 5x plus 7 3s are 21 minus 7x. Any doubt beta? 5x minus 7x beta, that is minus 2x, and 2,10,000 उस तरफ जाता बेटा, वहां पे 1,80,000 है. राइट? मतलब सब्ट्रैक्ट होगा तो minus 30,000 बचेगा बेटा. Any doubt? Minus minus 32 that side, मतलब x कितना मिला? 15,000. Any doubt बेटा in the first one बेटा? अगर x 15,000 है तो दूसरा जो y है वो भी कितना होता? 30,000 minus 15, मतलब y भी कितना आएगा? 15,000. मतलब जो दो टाइप के हमारे बॉन्ड है वो इक्वली हमें डिवाइड करने होंगे अगर हमें इंटरेस्ट 1800 चाहिए. 15,000 15,000. गॉट इट? एनी डाउट बेटा? इट्स सो इजी. सिमिलरली अगर हम दूसरा मतलब 2000 ले, राइट, रुपीज, तो यहां से मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं बेटा. दैट इज 5x प्लस 7y इक्वल टू हमें कितना मिलेगा? 2000 into 100 मतलब 2 लाख होगा बेटा. नाउ पुट द वैल्यू बेटा. So 5x plus 7 in place of y beta, it's a 30,000 minus x. Right? So 5x plus 2,10,000 minus 7x equal to 2 lakh minus 2x, 2,10,000 that side beta, मतलब minus 10,000 minus minus 30. What about x beta? That is 5,000. Any doubt? So here it is a put the beta 5,000, 30,000 minus 5,000 मतलब इसमें y हमें मिलेगा, right, 25,000. ये कौन सा इंटरेस्ट लिया था बेटा? ₹2,000 के हिसाब से था, और ये वाला था ₹1,800 के लिए. Got it? Any doubt बेटा? Easy question. Please write down. Continue with the next question beta. Question number 20. A bookshop of a particular school has 10 dozen chemistry books, right? 8 dozen physics. मतलब chemistry पहले बेटा. कितनी है बेटा? 10 dozen. Similarly physics 8 dozen and economics बेटा, that is again 10 dozen, right? Their selling price are rupees 80, 60 and 40 each respectively beta. Rupees 80, rupees 60 and rupees 40 respectively, right beta?
Find the total amount the bookshop will receive from selling all the books using matrix algebra beta. What we have to do using matrix algebra, right? So if I will suppose chemistry, physics and economics, right, books in a row form beta, we know it for total cost means beta number of books into price, right? So for the chemistry beta it's a 10, 8 and 10 beta economics, right? ये डजन के फॉर्म में है बेटा, we know it 1 dozen means 12 quantity, right? Either आप पहले से 12 मल्टीप्लाई कर लो बेटा, right? और इसका जो आंसर आ जाए उसके बाद लास्ट में 12 मल्टीप्लाई करो, both the way you got the same answer, right बेटा? So अगर मैं इसको रो में तो मुझे कॉस्ट किस में लेनी होती बेटा, कॉलम में, because we know it it's 1 into 3 बेटा, so definitely we need बेटा 3 into 1 means rupees 80, 60 and rupees 40 बेटा, that is 3 row and 1 column. तो अभी इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है 3 into 3 बेटा, एंड जो आंसर आएगा 1 into 1 फॉर्म में, मतलब एक ही एलिमेंट आएगा. गॉट इट? एनी डाउट बेटा? तो ये हमें कॉस्ट फाइंड आउट करना है. पहले इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देन लास्ट में 12 के साथ मल्टीप्लाई, दैट इज आवर रिक्वायर्ड फाइनल आंसर. गॉट इट? एनी डाउट बेटा? ओके, तो 12 तो साइड में रखते हैं बेटा. इनका मल्टीप्लिकेशन रो इनटू कॉलम बेटा, 10 into 80 that is 800 plus 8 6 48 बेटा. Again 10 4 40 means 400. Got it? Any doubt beta? So 12 into, right, 1680. Any doubt beta? Anyone? Right? तो इसका हमें आंसर मिल जाएगा okay, right? So 20160 इतने रुपीज, राइट, टोटल सेलिंग प्राइस होगी. एनी डाउट बेटा? एनीवन? राइट, सो इजी क्वेश्चन बेटा. ओके, राइट डाउन. कंटिन्यू विद द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा. क्वेश्चन नंबर 21 and 22 is almost same beta. Assume x, y, z and w and p are the matrix of order 2 into n, 3 into 3, likewise beta. So first of all we will write down beta. For the x, matrix is 2 into n beta. For the y, matrix is 3 into 3. For the z, matrix is 2 into p. For the w, matrix is n into 3. And the last one p, matrix is p into 3. Right beta? The restriction on n, 3 and p so that py plus wy will be defined are, मतलब py plus wy possible हो रहा है, डिफाइन हो रहा है. अगर py डिफाइन हो रहा है बेटा, इट मींस p का, अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिफाइन हो रहा है, हमारे पास प्रॉपर्टी है ना बेटा सारी. अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल कब होगा, जब फर्स्ट वन का कॉलम, मतलब p का क्या बेटा, p into k है, इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर, राइट, और इसका y का मैट्रिक्स ऑर्डर क्या बेटा, 3 into k. गॉट इट? इट मींस इसका कॉलम बेटा और इसका रो इनसाइड वाले क्या होने चाहिए, दोनों सेम होने चाहिए. मतलब डायरेक्टली यहां से हमें मिल रहा है बेटा व्हाट, दैट k equal to 3. एनी डाउट बेटा? यूज द प्रॉपर्टी. सिमिलरली व्हिच वन डिफाइन wy बेटा, right? For the wy, w beta, order n into 3 beta for the w, and for the y, order is beta 3 into 3. Got it? ये दोनों डिफाइन होंगे, मतलब इनसाइड वाला सेम, मतलब 3 into 3 सेम ही है, नो इश्यू, राइट बेटा. और यहाँ पे और एक चीज बेटा, ये इनसाइड वाला हो गया 3 equal to 3 हो गया. अब जो आंसर मिलेगा, ये तो ऑर्डर मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से हुआ बेटा. जो आंसर आएगा वो कौन से फॉर्म में होगा बेटा, अगर मैं py की बात करूं तो p into k के फॉर्म में होगा बेटा, और ये वाला कौन से फॉर्म में होगा बेटा, n into k. एनी डाउट बेटा? ये वाली जो प्रॉपर्टी है इनसाइड वो मल्टीप्लिकेशन होगा उसके लिए है, और जो आउटसाइड बचेगा वो हमारा आंसर होगा मैट्रिक्स का, राइट? या तो पता होगा बेटा, ऑलरेडी आपने पूरा का पूरा मल्टीप्लिकेशन, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो आपने पढ़ लिया है, राइट?
तो यहां पे बात करें बेटा, अभी और क्या डिफाइन हो रहा है, पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई डिफाइन हो रहा है। इट मींस पी वाई एंड डब्ल्यू वाई दोनों का एडिशन हो रहा है। और उसकी प्रॉपर्टी भी आपको पता है बेटा, दो मैट्रिक्स था, एडिशन तब पॉसिबल है व्हेनेवर बोथ द मैट्रिक्स ऑर्डर आर एग्जैक्टली सेम, मतलब दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो सेम होगा। इट मींस बेटा अगर पी वाई का ऑर्डर है, फाइनल आंसर क्या बेटा, पी इंटू के है, राइट, वो किससे इक्वल होगा बेटा, ये वाला जो ऑर्डर है वो किससे इक्वल होगा बेटा, राइट, डब्ल्यू वाई के साथ, तो ही इनका एडिशन पॉसिबल है, मतलब एन इंटू ते के साथ इक्वल होगा। गॉट इट, मतलब ते तो सेम ही है बेटा, तो आंसर क्या आएगा, P इक्वल टू एन। एनी डाउट बेटा? सो ऑप्शंस दिए हुए बेटा, देख लो, P इक्वल टू एन ये रहा बेटा, एंड K इक्वल टू 3 यही से हमें मिल रहा था, मतलब फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। एनी डाउट बेटा, एनीवन? इजी? देन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 22। सेम क्वेश्चन बेटा, एक्स वाई जेड डब्ल्यू, मतलब ये जो हमारे पास सारी कंडीशन थी वो सेम ही है। गॉट इट बेटा, राइट, बट सिर्फ जो यहां पे रिस्ट्रिक्शन था पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई विल बी डिफाइन, उससे तो यहां पे क्या बेटा 7x माइनस 5z डिफाइन हो रहा है। अब हमें पता है अगर x जो मैट्रिक्स है अगर उसके साथ 7 का मल्टीप्लाई करता है उसका ऑर्डर कभी भी चेंज होता नहीं है, बिकॉज कांस्टेंट स्केलर के साथ हमने मल्टीप्लाई किया, मतलब इसका ऑर्डर क्या होगा 7x, मतलब x का जो ऑर्डर है वही होगा। x का ऑर्डर क्या बेटा 2 into n, यही ऑर्डर होगा इसका, माइनस इसका क्या ऑर्डर होगा बेटा 5z की बात करूं, मतलब z का जो है वही होगा बेटा, मतलब 2 into p। गॉट इट और नॉट? अगर दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन डिफाइन हो रहा है, इट मींस दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा बेटा सेम, मतलब 2 into n किससे इक्वल होगा बेटा 2 into p के साथ। गॉट इट और नॉट? 2 to सेम बेटा, मतलब n इक्वल टू क्या होगा p, राइट, जो हमें यहां पर भी मिला था। अब हमें क्या चाहिए बेटा, इसका फाइनल आंसर चाहिए, 7x माइनस 5z कौन से फॉर्म में होगा। तो बेटा अगर दो का हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, राइट, मतलब उसका मैट्रिक्स का जो आंसर होता है वो चेंजेस होता नहीं है, मतलब इसका जो आंसर होगा वो भी कौन से फॉर्म में होगा बेटा 2 सेम है, मतलब 2 into या तो n लिख सकते हो या तो 2 into p लिख सकते हो बेटा, n इक्वल टू p है। गॉट इट और नॉट? मतलब ये दोनों आंसर सही हो सकते हैं। अब देखते हैं ऑप्शंस में इसमें से कौन सा दिया हुआ बेटा, ये रहा ऑप्शंस बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए में p into 2 दिया हुआ बेटा, हमारा आंसर है 2 into p, मतलब फाइनल आंसर इज बी। एनी डाउट बेटा? तो ये थी आपकी फाइनल एक्सरसाइज, राइट, 3.2। हाँ, राइट, जाने से पहले बेटा नेक्स्ट अभी जो हमारा लेक्चर होगा, राइट, वो मोस्ट इंपोर्टेंट होगा, तो प्लीज उससे लिए अगर आपको ये पसंद आया वीडियो तो इसको लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और पसंद आया तो दूसरे स्टूडेंट्स को भी शेयर कीजिए, तो लॉकडाउन में उनको भी हेल्प मिल सके, राइट। ऑल द बेस्ट।